Hello, good morning students. Today we will discuss how we prepare the electronic configuration and electronic models for different atoms from atomic number 1 to 20. In our previous class we studied about different rules and regulation to prepare electronic configuration or to fill the electrons in different orbits around the nucleus. And for that we study the Bohr's model or rules of the Bohr. First question is here, what is the meaning of electronic configuration? Electronic configuration means the filling of electron in increasing order of their energy in different orbits around the nucleus. So here we will study atomic number 1 to atomic number 20. How can we prepare the electronic configuration for them and how can we prepare electron models for them? So one by one we will study them. Atomic number 1 hydrogen, atomic number 2 helium. That means they have the electronic number 1, 2 respectively. Atomic number 3, 3 electrons in the outermost orbit. Protonic number explain the atomic number and protonic number will be equal to the electronic number in neutral atom. As we know, atom as a whole will be the neutral. 4 beryllium, 5 boron, 6 carbon, 7 nitrogen, 8 oxygen, then 9 fluorine, then 10 neon. Next 11 sodium, next 12 magnesium, next 13 aluminium, then 14 silicon, then 15 phosphorus, then 16 sulfur, then 17 chlorine, then 18 argon, then 19 potassium, and then 20 this is calcium, right? Electronic configuration according to the ruling K, L, M and N shells. So first we start with lower energy level, that is the K, only one electron is there, so electronic configuration is 1. Then 2, now 3. So first orbit, K orbit having the capacity of 2, so this is 2 and then next electron go in the next orbit, that is L shell. 4 Be, 2 2, 2 3, carbon 2 4, nitrogen 2 5, 2 6, 2 7 and 2 8. According to Bohr's rule, last orbit can retain only 8 electron and its capacity is also 8 according to twin square formula. So after completion of the second orbit we start the third orbit. So for 11 K L M N, ठीक, 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8. According to the rule, if last orbit having the 8 electrons, new orbit will start. One more important point to note here, last orbit can retain 8 electron if second last orbit having the electron equal to its capacity. So this is the reason we can fill 8 electron in the M shell. So now 8 octet complete. So in the next case, next potassium new orbit will start 2881, 2882. These are known as the electronic configuration and accordingly we will decide how many electrons present in different shells K, L, M. Due to lower energy we always start electronic configuration VK, then we go to L, fill the L according to its capacity, then we move from L to M and after M octet complete we go to N. अब हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं. डायग्राम भी हम इसी तरह ड्रॉ करेंगे. जैसे सपोज मैं 2-3 एग्जांपल ले रही हूँ. सपोज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द डायग्राम फॉर सिलिकॉन, दैट इज 14 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 284. सो दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज K ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज K L M. नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8. Next orbit having 4, 1 2 3 and 4. एक बात का ध्यान रखना है आपको, इनको पास पास नहीं बनाएंगे because they have the same charge, so repel to each other, so they tend to live apart from each other. So आपको इस तरह से उनको बिखर के बनाना है.
अब सपोज हमें बनाना है बेरिलियम का, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है 2. सो दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट. दिस इज द इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ द बेरिलियम. ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉडल. अब हमें वैलेंसी डिसाइड करनी है. वैलेंसी का मतलब होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन. वैलेंसी डिसाइड करने के लिए भी हमें डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट स्टेप इज वी प्रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन वी विल डिसाइड वैलेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब वैलेंसी के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्यों? उसका रीज़न ये है कि वैलेंसी जो है वो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है, दैट इज केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन सुपरफिशियल होती हैं, तो केवल वैलेंस ऑर्बिट ही केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करती है. तो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेंगे. दिस इज द रीजन फॉर द वैलेंसी वी विल स्टडी ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो फॉर द वैलेंसी फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द फॉर्मूला. वैलेंसी विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफ इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 to 4 यानी 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंसी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी. इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर उस ऑर्बिट की कैपेसिटी के बराबर है, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं के शेल में और के शेल की कैपेसिटी भी 2 है, तो ऐसे केस में उसकी वैलेंसी 0 होगी. यानी कि चूंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, तो और वो जो है कैपेसिटी के बराबर है, तो वो किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली होते ही इसीलिए हैं ताकि एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो सैचुरेट हो सके, यानी कि उसका ऑर्बिट कंप्लीट हो सके, या उस ऑर्बिट में कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की जितनी रिक्वायर्ड है वो पूरी हो जाए. सो दिस इज द रीजन वैलेंसी के लिए केवल आपको वैलेंस ऑर्बिट ही कंसीडर करनी है. तो नाउ हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1, हीलियम 0, क्योंकि 2 कैपेसिटी है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है. लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4. अब एक और आपको ध्यान रखना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ज़्यादा है तब हम क्या करेंगे. तो 4 से ज़्यादा है तो आपकी वैलेंसी होगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो 4 से ज़्यादा है नाइट्रोजन के केस में, तो हम वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इट विल बी 3, इट विल बी 2, 1 और 8 माइनस 8 इट विल बी द 0. और वैसे भी सेकेंड ऑर्बिट है, इसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, इसलिए भी ये कोई केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी वैलेंसी इसकी हो गई 0. अब आइए आप सोडियम पर. तो सोडियम के केस में 281, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1. मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फॉस्फोरस. अब फॉस्फोरस के केस में 8 माइनस 5 क्योंकि 4 से ज़्यादा नंबर है 3, सल्फर के केस में 2, क्लोरीन के केस में 1, आर्गन 8 माइनस 8 0, पोटेशियम 1 और कैल्शियम 2. अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटेलिक नॉन मेटेलिक भी केमिकल बिहेवियर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही हमको करते हैं. तो अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 3 हैं तो वो मेटल होगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 to 8 हैं तो वो नॉन मेटल होगा. और अगर कैपेसिटी के बराबर है इलेक्ट्रॉन तो भी वो नॉन मेटल होगा. तो हाइड्रोजन 50% कैपेसिटी है, दिस इज नॉन मेटल. इट इज ऑल्सो नॉन मेटल, दिस इज मेटल मेटल मेटल, लेकिन ये क्या है नॉन मेटल. ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमें एक लिंक चाहिए होता है. दिस इज द रीजन. बोरोन इज ए मेटलॉइड एंड दिस इज द मेटलॉइड यूज्ड टू प्रिपेयर बुलेट प्रूफ जैकेट्स, राइट. एंड नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल एंड नियोन नॉन मेटल, इनर्ट गैस है.
सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, सिलिकॉन मेटलॉइड है, ठीक है। और फॉस्फोरस नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, आर्गन इनर्ट गैस है एंड नॉन मेटल, पोटेशियम एंड कैल्शियम दोनों मेटल हैं क्योंकि आउटर में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। थैंक यू।